own people who are supposed to be there as a protection to me are standing against me, or they are not protecting me to that way. But I'm really very helpless. I cannot fight back, because if I fight back, if I voice out, I will be really in danger. This is what a security guard which is standing on the gate feels. वो चिल्ला चौट ज्यादा नहीं कर सकता, वो जोर से चिल्ला के किक आउट भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे पूरा सिस्टम स्पॉइल हो जाएगा। तो उसको एज अ स्पाई की तरह शांति से खड़े होके पूरा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सिस्टम चल रहा है अंदर, जो एल्वुलाई गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, या जो वीआईपी पर्सन है वो काम कर रहा है, उसको भी वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको वहां पर बहुत सारी चीजों को डील करनी है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आप देखोगे कि अस्थमैटिक्स यूजुअली फील दैट दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे हैव प्रॉब्लम्स विद देयर ओन फैमिलीज। द ग्रुप ऑफ रेमेडीज विच आर कमिंग अप लाइक स्पॉन्जिया, ड्रॉसेरा, Kali group, you have phosphorus, you have remedies like this. They have good relationship and bonds with the family, and they feel that their own family system is really hampering them. So this is where you talk about asthma, you talk about the anger, the insulted feeling what we have. Why this insulted feeling is there is because of the cartilage tissue which is there at the bronchial level. And when you talk about the protection, you talk about the gateway, you talk about your position, you talk about ki, see, I am important, you have to understand that I am important. But what that importance stands for is the esteem, is because the survival is there. If I don't show you that I am important, you will just stop me out. So that importance has to come up, that gradation has to come up, and therefore that extreme parts come up because of the smooth muscle tissue or the connective tissue which is there in relation to the bronchioles. And since we have seen that bronchioles is nothing but for the communication, and when there is a gap between communication, the anger which is there, the suspiciousness which is there, the anxiety which is there, which is not expressed to the outer world, leading to bronchial asthma. So this is the understanding whole and soul of bronchial asthma. If any doubt, if any problem, please let me know, because simply if you see in the books, they are there are people, there are books talking about the bronchial asthma or the asthma. They talk about only fear and anxiety, but it is not only fear and anxiety. Since we are talking about connective tissue, we are talking about smooth muscle fibers, we are talking about the hyaline cartilage. The whole bronchial tree is made up of smooth muscles, so we have to have esteem involved into it. We have to have the ecosystem, the devaluation conflict what the connective tissue carries, so that has to be there. And since at the tissue level you have ciliated mucous epithelium, you have got squamous epithelium, to the cilia level or to the epithelial level also the functions vary, and since the demand is there, the system has to develop in that way. So this is in toto the explanation for the asthma. Any doubt, please let me know, because this is really a important topic, slightly difficult to understand, but yes, it is very essential. Ma'am, Yeah. in many cases, in many patients, few children who go to school or during exam, before exam, they get this attack. Means of course they are in a chronic state, but sometimes when they come to us, they get the triggering of this asthma attack. But as you said, it is because of the esteem or love. Then how we could then I will take it as fear of or examination fear. That way we have to take it. No, it is not in kids, the examination fear. See, they don't know what exam they are going to face. But the problem is, if I don't perform better, and if I don't perform better, I don't get good marks. See, if you see the way the parents handle their kids in kids section, you talk to them and you will tell कि मम्मा क्या बोल के भेजती है घर से, तू अच्छे मार्क्स लेके आना तो आई विल गिव यू अ चॉकलेट। You have to perform best. It is not the teacher who is putting pressure upon the kids for performance at the children level, but it is the parental pressure which is more prominent in kids.
If parents tell them that कुछ नहीं होता, छोटी सी तो एग्जाम है, क्या होने वाला है, कोई बात नहीं, थोड़े से कम मार्क्स आने दो, कुछ नहीं होगा, they will not go into anticipation. So this anticipation is not because of the teacher pressure or examination pressure, but the pressure is about the performance. If I don't perform better, if I don't give my best, if I don't get good marks, my teacher is going to really punish me. So that is the fear, that is the anticipation. If I don't perform better, तो मुझे कोई टीज करेगा, मुझे कम मार्क्स आएंगे तो मेरी मम्मी मुझे पनिश करेगी, मुझे मारेगी, मुझे डांटेगी, टीचर मुझे डांटेगी, फिर टीचर किसको कंप्लेन करेगी, तो मदर को एक्सप्लेन करेगी, मदर को कंप्लेन करेगी. So till the 8 years, friends, it is never the whole and sole responsibility of the outer environment, but it is actually, since the brain is developing and the environment at the closest place, because the whole ecosystem is developing over here till the 8 years, the actually the causes are very close to the family net only. Am I clear, Kusum ma'am? Yes, ma'am. Thank you. You will find this, you search out and you will see that this pressure is now mounted by the teachers. Which teacher tells you have to get 100 out of 100 marks? Have you seen? Who tells a child to get 100 out of 100? Who builds the pressure कि तुमको बड़े होकर ये बनना It's a है? parent. Yeah, it's a हाँ. parents only, not teachers. True. So that makes him more anxious or anticipating. Yes. Right? Okay. In Astamana, you remember this case of Z security, what I have taught you? You will never fail. That will really beautifully help you understand what Astama stands for. Okay, ma'am. In anything else which you have not understood? What about children of 1 year with asthmatic bronchitis? Yes, 1 year children also, they will have their own anxieties, they have their own emotions which are coming up. And since 1 year children are dependent upon the mother, if they are breastfeed, they are completely dependent on the environment. Again, it is the parental conflict only, because their environment is, till 1 year the child is not exposed to the social group, they are dependent upon the mother, they are dependent upon the parents. So parental conflicts, the conflicts in the house, they feel unprotected, they have that animosity within their own family. So therefore, if you see kids age group and they are coming with asthma, they are not simple asthmatics or simple cases of bronchitis, but they are more the cases of atopic bronchitis or atopy which is there. So their own cells, they are so hypersensitive that a slightest stimulus. See, again, I will tell you one thing is, I might have forgot that asthma is nothing but a hypersensitive reaction. So the stimulus which is present is actually very small, very tiny. But the anticipation that this can be dangerous to the health is so huge that the reaction is out of proportion to what the danger is. So definitely in kids also, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप चलते चलते दौड़ते दौड़ते थोड़ा सा गिर जाओगे तो कुछ नहीं होगा, पर एक छोटा सा बच्चा जो बहुत नाजुक है ना, तो उसके लिए एक मदर का टाइनिएस्ट फ्राउनिंग का इमोशन या निग्लेक्शन का इमोशन या दैट बॉन्डेज का भी इमोशन, जैसे अगर यूजुअली अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस हम देखते हैं जब पेरेंट्स मदर्स जो है दे आर रियली वर्किंग विमेन, दे हैव लेफ्ट द किड्स टू the home and they feel that neglected from the parents and they want that attention, and they feel that if my mother goes away from me, I am really in danger. So that fear of danger, with because I'm completely dependent upon my mother, I'm completely dependent upon my father, and if I'm not getting that sufficient attention, so I will going to anticipate. If you run, if I ask you कि सामने शेर है, first thing what will happen is your sympathetic system which is getting activated and you start. That is what happens in bronchitis, that is what happens in hyperventilation, that is what happens when you anticipate that there is a danger.
first thing which will happen is your increased respiratory rate and your heart rate, because you are getting prepared for that danger, and your whole muscular system has to get activated. So asthma is again nothing but activation of your sympathetic activation system. And I have already taken this stress and relaxation stress cycle. So when you are going into that stress cycle, you go into that bronchos, that increased sympathetic activity, leading to constriction and leading to this increased respiratory rate with increased cardiac rate, because you are prepared to fight that danger. So that stress can be correlated even in kids, also in children about 1 year, but the whole process depends upon mother, since they are upon the mother. So you have to take mother's history when you come up with cases who are, I have taken a habit, आई मेड अ हैबिट कि 8 साल से नीचे अगर बच्चे मेरे पास कोई भी डिजीज के लिए आते हैं, आई by default ask my assistant doctors that you have to take a mother's history, which is very important, and you need to understand the whole environment in the family, and you get beautiful results, because mother is, child is reflection of what mother is suffering from. Any other question? I think Dr. Shreyash, it is clear with you. So many cases you all must have dealt with. So would you, can someone come up with a case where they have really seen everything like this, or they find that there is disparity not being observed? Any other situation seen by you all people in your asthmatic cases? This anticipation is the most important keyword for asthma, and you see all anticipatory anxiety ki medicines coming up here. So I will take up the case. Any questions, so that we don't come back to this point again? I'll just go ahead with the case analysis, and then we are done with the lecture. This is a lean thin individual who is coming to me. I think Yeah. So past history, there is jaundice and appendicitis. Mother is having asthma. Father met with an accident. He died in 2002, and mother died in 2014. Father died in an accident because he was an alcoholic, and he has got a sister and step sisters are there, three brother and one sister. He married in 2015, that is 6 years away, and at the age of 30 years he got married. He has right now two daughters. When the case was taken, at that time he had only single daughter. The whole family is there with me, so I know the whole cascade. Appetite normal, hunger intolerance, hunger he can tolerate, he wants to have cold drinks. Desire, there is no specific desire, only he cannot tolerate is fried food. He is thirsty, he has perspiration moderate on palms, on forehead, neck and back. He's chilly, desires open air, sound sleep, sensitivity, sorry, नॉइज बजता है, डीजे बजता है तो घबराहट होती है. ही डज नॉट लाइक नॉइज. ही हैज हेडेक फ्रॉम परफ्यूम्स. Traveling, he cannot sleep. He has smell, sense of smell being diminished, since he has got all the chief complaints. He said थोड़ा सा आभास होता है, और अकॉर्डिंग टू एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस ही सेड कि थोड़ा बुरा लगता है, कुछ होगा, और फिर उसके बाद होता है. इट इज नॉट क्लेयरवॉयंस, बट इट इज जस्ट अ सेंसेशन. सो इट tells you, from this physical general you come to know that he has got a strong sensitivity, and you will see that every aspect he's sensitive. He's like sensitive to closed air, he's sensitive to environmental changes. So that is the hypersensitivity which is seen at the physical level too. Then
ही इज बिलोंगिंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। बचपन अच्छा गया, लाड़ का था और सबसे छोटा था, पर पढ़ाई में रुझान नहीं था, शुरू से दिमाग मैकेनिकल लाइन में ही था। 10th स्टैंडर्ड लगा कि करो ये फील्ड में, पर पापा की तब तबीयत खराब होने लगी तो टेक ओवर करना पड़ा हमारे बिजनेस को। द सिचुएशन वाज लाइक कि उसको 10th स्टैंडर्ड के बाद पढ़ने नहीं मिला और उनको बिजनेस को टेक ओवर करना पड़ा। लेकिन अब उनसे पूछा गया, अच्छा ठीक है घर में कौन कौन है, तो ही सेड कि बाकी भाई लोगों से मुलाकात कम होती है, उन लोग सब जॉब करते हैं। तो जो फैसला था वो मेरा, अंडरस्टैंडिंग मेरा था। पापा का ऐसा हो रहा था क्योंकि पापा की तबीयत खराब हो रही थी और देयर वाज अ डिस्प्यूट इन द फैमिली। तो फिर लगा कि स्टेबल होना चाहिए, और फिर उसके बाद जब वो डिस्प्यूट सेटल हुआ उसके बाद हमने शॉप ही चलाना है। जानकारी निकाले और रीबिल्ड किया, क्योंकि जो फादर की जॉब थी या जो शॉप था वो उनको सरेंडर करना पड़ा था लोन इश्यूज के कारण, और ही वॉज नोइंग दैट ही हैज टू सरेंडर दिस, देयरफॉर ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड। और उन्होंने खुद का शॉप रिबिल्ड किया, जानकारी निकाली, रिबिल्ड किया उन्होंने। भाई लोग तो अपने इसमें ही रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, फील हो रहा था सगे होकर सपोर्ट नहीं है करके। उनकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, मेरे पास रास्ते भी थे, आसान हो जाता था अगर कोई जरिया निकल जाता मेरे लिए। पर अब बातचीत नहीं है उन लोगों से मेरे साथ, ना हम जाते हैं ना वो पूछते हैं, बस एक रिश्ता रह गया है, बाकी और कुछ भी नहीं। शुरू से मेरा फ्रैंक स्वभाव था, मारपीट नहीं, अवॉइड ही करता था। मिक्स होने की आदत है, बात करना खुद होके, किसी को मौका नहीं देता कि बोले, रूट स्वभाव का है। पुलिस केस से डर लगता था, बदनामी होती है ना हमारी, हमारे यहाँ था नहीं वैसा कभी। पापा बोलते थे दूर रहो, इन सब लफड़ों से दूर रहो। अगर उतरने पे आ जाता, अगर जबरदस्ती किसी ने उंगली की तो मैं छोड़ता नहीं, फिर पापा को आना पड़ता था अगर कोई इंसिडेंस हुआ तो। मुझे गुस्सा जल्दी आता है, जहां तक काबू करता हूँ, पर मेरा मन मुताबिक नहीं हुआ तो गुस्सा पी जाता था। भड़ास निकालता, ज्यादा हुआ तो भूल जाता था खुद होके बात करना। एंड किया सामने वाले ने, एक हाथ बढ़ाया तो ठीक है। घर पे आता, छोटी बात पे बहन से थोड़ा झगड़ा होता था, शैतानी करते थे ना, मुझे ही डांट पड़ती थी, मेरी गलती है ऐसा। मैं मस्तीखोर था, परेशान करता था, चीजें तोड़ता था, बिगाड़ना काम को, पानी में गंदे हाथ डाल देना। उतना ही लाड़का भी था, मामा से डांट पड़ती थी पढ़ाई के लिए, लेकिन चीजें कॉस्टली तो थी नहीं घर पे, तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं किया है, वैसा वैसा वाला तोड़फोड़ नहीं हुआ है। गुस्से में रोक लेता था, मैं शेयर नहीं करता था, नॉर्मल ना हो तब तक के, फिर बता देता था कभी कभी किसी को। रोता तो बहुत ही था, बहुत इमोशनल किस्म का हूं ना, दिल टूट जाता है। जैसे सोचा अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पर मिलते नहीं थे तो रो लेता था, अकेले में ही रोता था, किसी के सामने रो के कमजोरी नहीं दिखाते हम। जैसे रोजमिन, रोजमिन इज उनके डॉटर की नाम है, उसको लग गया था तो बहुत रोया मैं। पेरेंट्स एक्सपायर हुए तब लगा आगे की जिंदगी तो अंधकार ही है, कौन समझेगा कौन देखेगा हमको। एक सपोर्ट था, रीढ़ की हड्डी के जैसा सपोर्ट था। मम्मी से एडजस्ट किया, वो भी चली गई। 2015 में उसके मदर की भी डेथ हुई है, 12 में। पर मजबूत किया मैंने खुद को, अभी भी लगता था कि साथ है वो। शादी हुई, फिर सेटल हुई चीजें, पहले हमारी भी जमती नहीं थी, विद वाइफ ही टेलिंग। फिर रोजमिन हुई, तब से अच्छा था, अंडरस्टैंडिंग, धीरे धीरे मैरिज को समझने लगा। लगता था क्या जरूरत है, फिर खत्म हो गया गुस्सा। लगता था इसको छोड़ देना चाहिए, वो खुश नहीं है ऐसा लगता था। गलत था मैं शायद वहां पर। फिर मैंने डिस्कस किया अपने फ्रेंड से, वो बोला बच्चे होने दे, तब तक के रहेगा और फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। मैं अपनी चीजों का एनालाइज करता हूँ, आजकल गुस्सा नहीं लाता मैं। शादी के पहले तो थोड़ा चंचल था, अब सोचते रहता, टूल बना के लाइफ को क्रिएटिव बनाओ, मैं इंसानियत का भला हो ऐसा फोकस करता हूँ। नॉवेल्स पढ़ता हूँ, नॉलेज मिले, पढ़ने में लगा देता हूँ मैं अपना टाइम। मशीन को लेकर देखता हूँ, लॉन्च हुई अगर कोई नई मशीन
तो जानकारी रखता हूँ। भीतर क्या कर सकते हैं, क्या करके आए हैं, कर सकते हैं, वो देखता हूँ। और इनको मशीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, बनाना, ये सब चीज़ें चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी ने फीलिंग बताया, घुल मिल जाता, एहसास करता, अगर मेरे साथ हुआ होता तो फील कर लेता, ऐसा भी हो सकता, दुख होता है, तुरंत हेल्प करता, गलत दिखे देखी कोई चीज स्टैंड लेता हूँ, एक्सीडेंट हो सामने वाले के खिलाफ जाता हूँ, फिर शुरू से स्ट्रांग रहा हूँ, मार्केट में भी भिड़ने ना दो, कोशिश रहती है कि सब अच्छे से रहे। पापा दोस्त जैसे ही हैं, दोस्त बोलते वो मुझे अपना, भाइयों का पता था अलग जाने वाले हैं, शुरू से ही था उनका, तू पढ़ ले, पापा इनकरेज करते थे, भाई लोग को देख ऐसा ही करना है बोलते थे। भाई लोग का बिहेवियर वैसा था नहीं, लगता था ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, इन लोग अलग अलग समझते हैं करके, वैसा था नहीं कुछ, पहले था ही उनका ही लाड़ करते, पहले लगता था मुझे, फिर दिल में बाकी नहीं रहा, पता था घर छोड़ के जाएंगे करके वो लोग, वो अपनी लाइफ में खुश हो गए और मैं अपनी लाइफ में। शुरू से बात नहीं थी, सबका टाइम अलग था आने का और जाने का, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं हुई। मम्मी पापा के झगड़े होते थे, पापा अल्कोहल लेते थे, वो बंद कमरे में ही लड़ाइयाँ होती थी, लगता था मना करने के बाद भी करते हैं ऐसे। मजबूत कर लिया खुद को कि सुधरने से रहे पापा तो, मम्मी ने स्ट्रांग बना के रखी, आगे क्या करना है करके स्टैंड होना है शॉप के लिए, मम्मी ने मुझे हौसला दिया। फादर एक्सपायर हुए, उसके बाद कोर्ट केस हुआ था, शॉप थी, ओनर्स ने सेल आउट कर दिया बिना बताए, तो लैंडलॉर्ड ने किया परचेज, किराया मंगा दिया नहीं, बोले ओरली बताया, सब करके लिखित दो, कोर्ट में जमा होते थे पैसे, दान की जगह थी, काफी कोर्ट केस चला, दो पैसे खाली करता बोला मैं। फिर मैंने नया शॉप लिया, टेंस हो गया था, आगे कैसे भविष्य होगा, जगह हाथ से निकल जाएगी, डर, आगे वाला समय कैसे होगा, कस्टमर्स जिनको पता था डाइवर्ट होने लगेंगे, और फिर ऐसा लगा कि ये सेटल कैसे होगा। फिर स्कूल मैथ्स में वीक था, मस्ती करना स्कूल में तो कैप्टन बना के रखता था, फिर भी मानता नहीं था, घर पे कंप्लेंट्स जाती थी, सामने ही शॉप थी पापा की, चिल्लाते थे पापा, मैं करता था ऐसा, मालूम था पता चलेगा, 8 तक के था, बाद में धीरे धीरे कम होते गई मस्ती, पढ़ाई में कंसंट्रेट करता था, पढ़ाई का समझा और पापा चले गए, पर उतना फील नहीं लगा, पढ़ाई छूटी तो समझ के पढ़ता था, मैथ्स में फेल हुआ था, दिमाग में नहीं जमता था, याद जल्दी होता था, समझता था, लेकिन जल्दी भूलता भी नहीं था चीजें। पार्टिसिपेशन सभी चीज़ों में रहता था, कबड्डी, कल्चरल एक्टिविटी, क्विज क्विज और कल्चरल एक्टिविटीज़ में सब में खेलना, हर साल बुक रहती थी साइंस मॉडल के लिए, नेशनल लेवल पे गया था मॉडल मेरा, ट्रॉफीज है स्कूल की, खुद से मॉडल बनाए बिना मदद के, खुद शॉप में जाके बनाना है ऐसा, प्रोजेक्ट डिस्क्राइब करना, हेल्प लेना अवॉइड करता था, सारा क्रेडिट डिवाइड हो जाता है ना, शान के खिलाफ है अपने दिमाग का क्या, अभी भी वन मैन शो है, अभी भी वन मैन शो है, मशीन में इंटरेस्ट बहुत रहता है मेरा, रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना, स्कूल में सर टीचर आए, गाड़ियों का डिजाइन दिखाया तो लगा मौका आया, सपोर्ट भी किए, जो दिखा दिमाग में बैठा था। 10th में सप्लीमेंट दिया, पढ़ाई नहीं होती थी आगे का, सोचा नहीं, मैं 6th में फेल हो गया था, रिपीट करवाया, 1 साल बर्बाद हुआ, स्ट्रेसफुल था, शॉप जाना है, 11 साल में जाऊंगा दुकान, हिंदी मीडियम थी और एकदम से मेरे को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया गया, हाई स्कूल में मैं कवर नहीं कर पाया, कम मार्क्स आने लगे, फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल से निकाल दिया, क्यों निकाले, झगड़ता था मैं, चिड़चिड़ होने लगा, फ्रेंड सर्कल अच्छे लोगों से था, एनकरेज करते थे, काफी फ्रेंड्स थे हमारे, लेकिन थोड़ी बहुत वहां से तम्बाकू की आदत थी, मम्मी बोले कोई काम नहीं आता, मजबूत बन, पता था पूछेंगे नहीं कोई लोग, पलट के नहीं देखने वाला कोई, समझा कि कभी आएंगे नहीं भाई लोग, अकेलेपन रहता था, कैसे रहूंगा करके, क्या होगा क्या नहीं, काम में बिजी रहता था, मैं ज्यादा न्यूट्रल रखा भाइयों से। फिर जब पापा एक्सपायर हुए,
हिस्से की बात हुई, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, सबका सवाल आया। ये गया कि मेरे साथ की क्यों हो रहा है, ऐसा लगा। सपोर्ट के बिना डिवाइड की बात की, दोबारा बात की तो ये था कि वो रहेंगे या मैं। जो आएगा दरवाजे पे, डिवाइड होगा, हम कहाँ जाएंगे। जेवर जो मैंने अपने वाइफ के लिए बना के रखे थे, उनके लिए भी बोला ये भी डिवाइड करो बोल के। गुस्सा आया, चिड़चिड़ हुआ, लेकिन फिर उसके बाद हमारी बात बंद हो गई। अपने जगह खुश रहो, वो टाइम टर्निंग पॉइंट था, केस का था। ऊपर से छोटे बात पे यूनाइट होके हम दोनों को अटैक के पोजीशन पे आए। डिफेंस में कांटेक्ट मत रखो, बोला मैंने। एक्चुअली ही वांटेड टू टेल इज कि ये सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि फैमिली में हस्बैंड और वाइफ इन दोनों को अलग कर दिया गया था, या मदर और ही वांटेड टू से कि मुझे एक तरफ कर दिया गया था और पूरी फैमिली जो थी वो एक तरफ हो गई थी डिवीजन के टाइम पे, और मेरे ऊपर अटैकिंग मोड था। तो मैंने ये बोला कि डिफेंस में सबसे बेटर ये है कि इन लोगों से अपना कांटेक्ट ही मत रखो, रिश्तेदारों से बात ही कम कर दो, सारे मतलबी साथी हैं। ये पहले से फील होता था। मम्मी बीमार थे, पकड़ के बोला हॉस्पिटल रहे या घर पे। मैंने सभी को बोला, पर किसी ने सुना नहीं। नफरत सी हो गई है, कोई किसी का नहीं होता। भाई लोग, भाभी अवॉइड करती थी, देखते रहो करके। पैसे दे रहे वो काफी है, ऐसा था। अकेलापन रहता था, कैसे होगा, लाइफ पड़ी है। मम्मी के बाद कौन है करेगा हमारा। शेयरिंग नहीं करता मैं, अपने आप में रहना, खुशियां बांटना, गम नहीं बांटना है। ज्यादा अकेले पसंद नहीं, कुछ इश्यू बनेगा, ट्रस्ट अगर तोड़ दिया तो, लीक करे बातें तो। हो चुका था, वजह रही है फ्रेंड, है ना। फ्रेंड से किया मजाक उड़ाते थे, अच्छा नहीं लगता था। कंफर्टेबल है, अपने में रखो। ज्यादातर काम में निकाला फ्रस्ट्रेशन। कोई चीज मशीन अच्छी बन जाए तो आदत रही, इसीलिए पूरा ध्यान मैंने अपना काम में घुसा दिया। और जितना गुस्सा आता था, गुस्से को शांत करना है तो कोई मशीन पे डाल दो, बहुत सारा काम करो, ओवर टाइम करो, गुस्सा शांत करो, प्रॉफिट वाली चीज बनाओ उससे। वाइफ से शेयरिंग करता हूँ अब मैं, लाइफ अच्छी चल रही है। हमारी बेबी के पहले था बिहेवियर ऐसा, क्यों होता है, फिर उसके बाद अच्छा रहा। बाकी किसी से लेना देना नहीं है, शुरू से रिलेटिव से अवॉइड करता था। पेरेंट्स खुद नहीं जाते थे, बर्दाश्त नहीं होते थे पापा उनको, मैं नहीं जाता था। वो लोग क्यों आए, फैमिली बड़ी है, जरूरत नहीं पड़ती थी। दोनों सिस्टर वैसी रहे, हिस्से का हुआ था करके, करो करके डिवाइड और अपना जियो। शॉप लगाया, मेरा सेटअप होने का है, इनफैक्ट शादी नहीं हुई थी, खत्म कर दो बोला। मेरी लाइफ में रहने दो, तुम्हारे घर लाले नहीं पड़े हैं ना। मैं स्टेबल नहीं हुआ, ये सब टेंशन में था मैं। लेकिन फिर डिवीजन हुआ, बाकी लॉकडाउन में साल भर का अर्निंग चलता था, खर्चा उस पे, ईएमआई पड़ी है, तो ऐसे काफी टेंशन्स रहे हैं। स्कूल लाइफ अच्छी रही, दुकान जाने लगा, काम समझने लगा। 5-6 महीने हुए पापा गए थे जब, उसके बाद जितना सीखना है वो नहीं हो पाया, जिम्मेदारी आई, फिर कवर किया। 1 साल लगा, निकल गए थे भाई लोग। हेल्प हो जाती थी अगर वो रहते तो, मौका नहीं मिला। बात करे निकल गए, आते थे वो लोग, वो क्या कर सकते थे, उनकी भी फैमिली थी अपनी, खर्चा देते थे, घर चलता था। खुद से समझना, मैंने मेरी एनालाइज करने की आदत है, मुझे ऐसा लगता है अपने आप को समझा लो। अपना पढ़ना चालू किया, वैसे मैन्युफैक्चरिंग का पकड़ बनी, पैसों का प्रॉब्लम नहीं गया। चाचा लोग थे नहीं, मालूम था ये सिखा रहे। वो लोग वैसे पीछे तारीफ भी करते थे, सपोर्ट तो कोई था नहीं। 2003 बहुत टफ गया। 2006 हर महीने दिल्ली जाना, माल जाता था, बना के सेल आउट होता था। मेरे साथ वर्कर है, वो सपोर्ट कर देते हैं। 3 लोग हैं मेरे हाथ के नीचे। मैरिज का उसने बताया कि स्टार्टिंग में टाइम पे जाना है, वाइफ को था लेट जाओ, समय दो करके, लेकिन मेरा ऐसा रहता था कस्टमर है, लेट होता था। मैं अकेली रहती हूँ, वाइफ का कहना था, तो झगड़े होते थे। लेकिन अब ठीक है, फिर वो खत्म हो गए। जब दुकान का केस चला, पता था सरेंडर करना पड़ेगा, पैसे पहले ही जोड़ के रखा था, शॉप परचेज करके रखा था।
लोन तो दोस्त ने उठा के दे दिया, पैसे मेरे थे। ईएमआई वो भरी, भारी पड़ रहा था। बेच डाला, पैसे रिफंड हुए, काम आए। दोस्त ने इस्तेमाल कर लिए, वो दे रहा है। बताया नहीं था पहले, यूज करा करना पड़ा बोले। डर था, कैसे निकलेंगे इस समय में ये पैसे, कितना सपोर्ट करेंगे। मैंने बिगाड़ा नहीं, फिर भी मेरे साथ क्यों किया ऐसा। पर दे रहा पैसा, ठीक है, बराबर है, ओके। वो 8-9 साल पहले जिम का शौक आ गया था, स्टेरॉइड लेना बिना पूछे लिया, डाइट प्लान के हिसाब से देते वो। बाल जाना चलो हो गए थे। दोस्त को भी सेम प्रॉब्लम हुआ, कमजोरी, एक्चुअली ब्लड जाना शुरू, इट इज ब्लड जाना शुरू हो गया था। कपड़े खराब होने के डर से, ब्लीडिंग के कारण, फिर मैंने बंद कर दिया। अल्कोहल स्मोकिंग करता था, मेरी मस्ती के वजह से ही हुआ है सब कुछ। दोस्त के साथ जाना पब में वगैरह, हफ्ते भर बाद संडे नशे में रहना। ड्रग का भी रहा है मेरा, हर वीक में 2 बार होने लगा था, तो धीरे धीरे कंप्लेंट चालू हो गए मेरी वजह से। दिन में देख रहा हूं मैं, ये दिन देख रहा हूं, डॉक्टर ने बोला था ये लत खत्म कर दो बोले। डाइवर्ट किया दिमाग, नमाज में लगाया मन को। मम्मी को पता चला, पर फिर वो एक्सपायर हो गई, तो उसके बाद से तो सारी चीजें छोड़ ही दिया। स्टॉप की दवाई की प्रॉब्लम होती है थी, मजबूर कर लिया, मजबूत कर लिया अपने आप को। शादी के पहले सब क्लियर कर लिया। घर पे समय दे रहा हूँ तो खुश रहती थे हम लोग। कोविड के वक्त सपोर्ट करती थी वाइफ, घर पे काम कर लो, पर मशीन बड़ी थी। फिर वो ओल्ड इवन का चालू हो गया था दुकान, इलीगल अपन ने किया नहीं कुछ भी आज भी। मेरा कांटेक्ट है ज़्यादा, अवॉइड करता मैं। जब से तकलीफ है, खास अवॉइड करता हूँ मैं सबसे। पहले से लाइफ बिजी हो गई है, अभी टाइम ही नहीं, कमी है। वर्कलोड ज़्यादा है, काम का प्रेशर। मैं नमाज करता, थोड़ा बेटर लगता है। टाइम दे देता, क्लियर बता देता, सामने वालों को पता रहता है क्या करना है। गुस्सा कम होते जा रहा है मेरा आजकल। घर का झगड़ा हुआ, हिस्से का हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं है। ज्यादा अकेले रहना पसंद है, ट्रैवल भी करना अकेले या काम हो। डिसीजन खुद लेता हूँ, अभी भी वाइफ को पूछता हूँ। इनहेलर लेता, मेरी गलती की वजह से लगा ये मुझे बीमारी। नहीं करता ओवर, ये दिन ना देखना पड़ता। गुस्सा आता, खाली बैठे नहीं रहना था, उस टाइम किया, वो अभी नहीं करना। जो होती थी गलती, हो गई करके। हिस्से का जब सिचुएशन था, अंदर से झंझोड़ दिया था। सारे तुम यूनाइट हुए, हमारे अगेंस्ट हुए। तुम अच्छे बुरे टाइम करे खड़े रहो, नहीं खड़े हुए। माफी मांगे, पर बोला माफ कर दिया, पर दरवाजे पर नहीं आना। बिना मम्मी के कैसे होगा, बस वही था उस समय। फ्यूचर का सोचता, इनकम चालू हो जाए, सिक्योर कब होगा। 20 साल बाद कैसे कुछ आगे तक की ही कर पाऊंगा ना कहीं इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी लेके किराए पे दे दो करके। वो चालू है, ठंडे दिमाग से कर रहा हूँ, और फ्यूचर का तो लगता ही है। दिस इज वॉट ही हैज टोल्ड ड्यूरिंग द केसेस। एंड फॉलोअप्स जब भी हुए हैं उनके, तो ही हैड ऑलवेज गॉट दैट एंजाइटी कि मैडम जो भी आप दवाई दे रहे हो, उसके बाद इनहेलर और पफ जो है, पहले जो 15 टाइम्स 20 टाइम्स देना पड़ता था, वो बीच में 3